So today I'm going to explain this electronegativity. Electronegativity. Now, what is electronegativity? See, when I'm going to define this electronegativity, then can say that electronegativity of an element En. I'm writing this En. That is what electronegativity. Okay? Electronegativity of an element is the tendency of its atom to attract shared pair of electrons towards itself. Right? I will explain it. Towards itself in a covalent bond. In a covalent bond, right? It is represented by zeta. इसको zeta बोलते हैं, ठीक है, या की बोलते हैं, ठीक है, जो भी है, what is it? Now see this. What is this electronegativity? Your attention about this. What is this electronegativity? Okay. Okay. When I'm going to explain this electronegativity, look at here. Suppose if I'm writing here Cl2, it means what? That is Cl-Cl covalent bond. At the same time, I'm writing this HCl. बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे. Now this is what pure covalent bond. Pure covalent bond. But this is polar covalent bond. As you know that covalent bond forms because of the sharing of electron. When we see this chlorine, as you know that its atomic number is what? 17. And this chlorine also having atomic number 17. When we consider this chlorine 17 atomic number, then we write the electronic configuration 2, 8, and 7. It means what? One chlorine required one electron to complete their octet. So normally we can say that 7 electrons present in this chlorine outermost cell, and 7 electron present in this chlorine, right? So for completing their octet, one chlorine share one electron with other chlorine. These 2 electrons is considered for this chlorine as well as this chlorine. This is called sharing of electron, and this sharing of electron is responsible for the covalent bond. So in this case, in case of chlorine, which is pure covalent bond, sharing of both electron present in the center of this 2 nucleus. In short, we can say that sharing of both electron present in the center of this 2 chlorine atom. Chlorine, single covalent bond because of the single sharing of electron
and here is the sharing of electron in center of these two chlorine atoms. Because of that it is pure covalent bond. But when I'm going to explain this HF, देखना ध्यान से बेटा, when I'm going to explain this HF, so we know that hydrogen atomic number is what, 1, and chlorine atomic number is what, 17. Here we write this 1, here we write this what, 287. Hydrogen required duplet for completing their duplet 1 electron, and it required 1 electron for completing their octet. Because of that, here is the 1 electron in hydrogen, and here is the 7 electrons in chlorine. बहुत ध्यान से देखो, right? In this case, as I told you, this is the 7 electrons in chlorine, and here is the 1 electron in hydrogen. Red dot indicating the hydrogen electron and yellow dot indicating the chlorine electron. Now, what is the important part? Important part in this covalent bond is what? Hydrogen chlorine single covalent bond is not pure covalent bond. Reason behind that, electronegativity. Listen carefully. Electronegativity of chlorine is greater than hydrogen. हाइड्रोजन के कंपेयर में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये एक प्रॉपर्टी जो होती है, जो मैंने लिखा अभी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन. इट मींस व्हाट? This is the capacity to attract the shared pair of electron. It means what? In this case, shared pair of electron not present in the center of these two atoms. Shared pair of electron just shift towards the chlorine atom. What I'm using word shift towards the chlorine atom. जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो दोनों एटम्स के ठीक बीच में नहीं होता, वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज्यादा चला जाता है, और क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज्यादा जाने की वजह से इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव. तो ये हो जाता है पोलार कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड है बट इसके ऊपर पोलैरिटी क्रिएट हो गई है. ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट ही है बट नॉट प्योर. इट इज पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दो अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एटम्स यहाँ पे अटैच्ड हैं, और उस केस में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ चला जाता है, थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो जाता है. इसके लिए उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव निगेटिव और दूसरे के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है. दैट इज कॉल्ड व्हाट? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. एंड दिस पोलैरिटी क्रिएट इन द कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, sir. Yes, good. Pratyush? Yes, sir. कहाँ थे लास्ट लेक्चर? आप थे नहीं? था सर मैं. लास्ट लेक्चर मेरा थे? हाँ सर. अच्छा, okay. See this. So understood this part? Very good. नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ फिर, ठीक है? हाउ टू, देखो ये यूनिट लेस होता है, इसका यूनिट नहीं होता कुछ. हाँ, नो यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यूनिट नहीं होता, ठीक है? अब मैं देखूंगा कि कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, ठीक है? व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट दिस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और फिर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था अलग अलग मेथड. जैसे पॉलिस ने दिया था, मुल्केन ने दिया, मुल्केन स्केल है, पॉलिस स्केल है, ठीक है? और इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे.
रिटेन। चलिए आगे देखिए। नाउ सी, how to calculate this electronegativity। ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिया था, उसमें से मेन मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट है, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर व्हाट स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए कौन कौन से स्केल है अपने पास? तो पहला इसमें बेटा दैट इज कॉल्ड व्हाट, पॉलिज। पॉलिज मैंने आपको क्वांटम नंबर बताया था, पॉलिज स्केल साइंटिस्ट। व्हाट इज पॉलिज स्केल? पॉलिज ने कैसे फाइंड आउट करने के लिए बताया था? तो देखो यहाँ पे इसका सिंपल सा फॉर्मूला है पॉलिज स्केल के लिए। आई एम राइटिंग हियर जीटा ए माइनस जीटा बी, एक्स भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ओके, इज इक्वल टू 0.208। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। रूट डेल्टा। अब वेयर डेल्टा इज व्हाट, ठीक है, इसी हम डेल्टा ए भी बोल सकते हैं। ए बी, ठीक है। अब जरा देखना यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं डेल्टा, ये क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं समझाता हूँ। वेयर डेल्टा ए बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीजें, आप टेंशन मत लेना। माइनस रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। बहुत अच्छे समझना। दिस विल बी कम इन व्हाट, इन किलो कैलोरी पर मोल। ओके, सी ये होता क्या है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। दिस इज व्हाट बॉन्ड एनर्जी of AB. Here is this what, bond energy of AA. Here this is what, bond energy of BB। जरा इस कहानी को समझो। सपोज व्हेन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दिस HCl, तो यहाँ पे देखो H H के बीच में बॉन्ड है, Cl Cl के बीच में बॉन्ड है, ये फॉर्म करेगा क्या, HCl। यही तो होगा रिएक्शन। अब जरा देखना, इस 1 मोल ऑफ एच एच को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड व्हाट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए। यहां पे जो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड व्हाट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी।
और ये जो बॉन्ड एनर्जी क्या है, HCl का, इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एबी बॉन्ड एनर्जी. तो आई होप यू अंडरस्टूड. 1 मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं एटम में, सो व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बॉन्ड एनर्जी. सो दैट इज द बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, 1 मोल के लिए. तो यहाँ पे हम किलो कैलोरी में फाइंड आउट कर रहे हैं. व्हेन आई एम यूजिंग दिस स्केल किलो कैलोरी, देन वी यूज द 0.208. बात है आपको समझ में आ रही है बेटा? ठीक है. यस सर. हाँ, अब जरा देखो, इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको मॉड लगा देते हैं यहाँ पे, मॉड. अच्छा, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और डेल्टा ए बी इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी रेज टू पावर 1/2. रूट लगा दो या फिर 1/2 लगा दो. इज इट क्लियर? समझा नहीं ये? हाँ. हाँ सर. चलो, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, क्या किसको क्या बोलते हैं वो लिख के रखो, अदरवाइज भूल जाएगा आपको. So we can write here E of AB, that is what, bond energy of AB, E of AA, bond energy of AA, E of BB is equal to bond energy of BB. ठीक है, राइट. अब जरा देखना बेटा, यहाँ पे अगर सपोज किलो कैलोरी की जगह हमने किलो जूल यूज किया, देन व्हाट विल बी द अवर फॉर्मूला. यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, इसको यहाँ पे सेपरेट आउट करता हूँ. सेम यहाँ पे फॉर्मूला होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. यहाँ पे राइट हियर जीटा ए माइनस जीटा बी मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, राइट. वर्ड में ले लिया इसको. देन वी गेट व्हाट, 0 पॉइंट, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी. हाँ, नाउ वी राइट व्हाट, 102, 0.102. ठीक है, रूट डेल्टा ए बी. अब आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. डेल्टा ए बी, यू नो दैट व्हाट इज दिस, बट नाउ इट इज व्हाट, किलो जूल पर मोल. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. जस्ट ये चेंज करना है. अगर 0.208 है, देन इट इज व्हाट, इन किलो कैलोरी पर मोल, और जब 0.102 है, देन इट इज व्हाट, किलो जूल पर मोल. तो बॉन्ड एनर्जी किस में दिया है आपका, किलो कैलोरी में दिया है या फिर किलो जूल में दिया है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी ये वैल्यू किस में आ रही है, राइट. If bond energy is given in the kilocalorie, then you will use this formula 0.208. If bond energy is given in the kilojoule, then you will use this formula 0.102. Clear है? यस सर. Actually 17 होता है, मैंने 102 ले लिया. कैलकुलेशन इजी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखना, किलो कैलोरी और किलो जूल. हाँ, यूनिट. चलिए, दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग. सेकंड मेथड, हैव यू नोटेड दिस? यस सर. चलिए, now see this point. Okay, second scale, that is what, Mulliken scale. Huh, so I'm just writing this what,
Mulliken scale. देखते हैं Mulliken स्केल क्या होगा। सो इसके हिसाब से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो कंपैरेटिवली होता है, कंपेयर करते हैं, रिलेटिव वैल्यू होते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, आयोनाइजेशन, बहुत ध्यान से देखना, एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, डिवाइडेड बाई 2। अंडरस्टूड दिस पार्ट। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए कौन से स्केल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल के लिए ये फॉर्मूला है, मुल्किन ने दिया था, दैट इज व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आई एम राइटिंग हियर, divided by 2. So this IE, ionization energy in electron volt per atom, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। These value always in what, electron volt per atom. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मैंने बताया था। एंड दिस E is what, electron affinity, in electron volt per atom। तो हम कह सकते हैं मुल्किन के हिसाब से क्या था, अकॉर्डिंग टू द मुल्किन्स, electronegativity is the average of ionization enthalpy and electron affinity. Is it right? Yes, sir. तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स एम या जीटा एम। जीटा एम मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बाई मुल्किन। अब यहाँ पे जरा नोट देखो, ये कहीं मिलता नहीं जल्दी, मैं बना देता हूँ, लिख देता हूँ आपको नोट, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। सी, आई एम राइटिंग हियर मुल्किन वैल्यू of electronegativity are about 2.8 times sorry, higher than values on Pauling scale। Clear है? That means we can say that zeta of Pauling equal to the zeta of Mulliken about 2.8। क्या समझ में आ गया आपको? मुल्किन की जो वैल्यू आती थी जब कैलकुलेट किया गया पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो वहां पे क्या था, 2.8 टाइम्स इज व्हाट, हायर देन द पॉलिश। तो दोनों में रिलेशन निकाल दिया, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिश स्केल इज व्हाट, इक्वल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुल्किन स्केल अपॉन 2.8। गॉट इट? Yes, sir. हाँ, वेरी sir. गुड।
वेरी गुड। चीजें समझ में आ रही हैं सुचिता? सर। वेरी गुड। नोट्स अच्छे से लिखते रहो, सब बनाते रहो। हाँ चलो, इज इट क्लियर बेटा? चले आगे। एक और स्केल है यहाँ पे, वो भी लिख के रख लेते हैं हम लोग। नॉर्मली तो ये दोनों में काम हो जाता है आपका, तो ये दोनों में तो काम हो जाएगा आपका मेंस लेवल तक का। फिर भी एक और देख लेते हैं इसको, जो है अपने पास। देख लेते हैं इसको। थर्ड वन, दैट वन इज व्हाट? एल्ड्रेड रोचो। स्केल। रोचो स्केल क्या है, देखते हैं इसका। सो अकॉर्डिंग टू दिस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी AR, AR का मतलब आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे M लिखा, मतलब मुल्केन पॉलिश, और ये कैसा है? एल्ड्रेड रोचेस। ठीक है, AR इज इक्वल टू 0.359 Z effect upon R square. That means zeta P is equal to zeta AR plus 0.744. In this case, R is equal to covalent radius of atom, किसमें लेंगे रेडियस? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, एंड जेड इफेक्ट ये मैंने बताया आपको पहले से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन पेरीफेरी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने बताया था, अगर जिसने नहीं नोट अटेम्प्ट किया होगा, जरा देखो यहाँ पे क्या होता है। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस पे क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड विच अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन। बट अगर इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियर का चार्ज, न्यूक्लियर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना स्ट्रांगली यहाँ पे पहुंचना चाहिए आउटर मोस्ट शेल पे, उतना नहीं पहुंच पाता, बिकॉज ऑफ द शेल्डिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे और एज अ स्क्रीन काम करते हैं। तो पूरे के पूरे न्यूक्लियर फोर्स को यहाँ पे नहीं पहुंचने देते, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे एग्जैक्टली नहीं पहुंचने देते। तो कितना पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। तो उसमें क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, राइट, जेड इफेक्ट इज व्हाट? न्यूक्लियर चार्ज माइनस ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, सिग्मा जहां पे आता है। इसको कैलकुलेशन का मैंने बताया था मेथड, कभी होगा तो फिर मैं बताऊंगा, जब मैं क्या बैकअप लेक्चर लूंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो दैट इज, एक दिमाग में बना लो क्या होता है जेड इफेक्ट, दैट इज व्हाट? नॉट एग्जैक्टली रीच, राइट ना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट, अदरवाइज शेल्डिंग इफेक्ट। So what effective charge reach to the outermost electron, that is called what? Z effect. Clear है?
हाँ सर। गुड, चलिए नेक्स्ट पार्ट, नोट डाउन दिस पार्ट आल्सो. Have noted? Yes. Now factor affecting. What are the factors which affect this electronegativity? ठीक है. Factors affecting electronegativity है. Factor affecting electronegativity. पहला है फर्स्ट वन, दिस इज न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स. न्यूक्लियर चार्ज. आप मुझे बताओ, सपोज यहां पे मैंने एग्जांपल ले लिया, एक न्यूक्लियस है जिसमें 3 प्रोटॉन है, P+ है, और एक न्यूक्लियस है जिसमें 5+ है. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, विच वन इज स्ट्रांगली अट्रैक्ट दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? डेफिनेटली दिस वन, राइट ना, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव ना, सो इट विल अट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली एज कंपेयर टू दिस वन. क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है न्यूक्लियस में, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा. सो वी कैन से दैट electronegativity is directly proportional to nuclear charge. Second point is what? Atomic radius, size. अब बताइए साइज का क्या इफेक्ट गिरेगा? अगर कोई एटम छोटा है और कोई एटम बड़ा है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, कौन मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को? देखो, अगर, हाँ बोलो. सर जो नजदीक वाला है वो. यस डेफिनेटली, मतलब जिसकी साइज छोटी होगी, तो एटॉमिक साइज अगर छोटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा. एटॉमिक साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? कम होगा. सो वी कैन राइट हियर electronegativity is inversely proportional to atomic size. एटॉमिक रेडियस भी लिख सकते हैं. तो चलो तीसरा, थर्ड पॉइंट इज व्हाट? चार्ज ऑन आयन. इंपॉर्टेंट है.
charge on ion. देखिए यहाँ पे कैसा होता है, कैटायन एंड एनायन दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब जरा देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि Fe जिसके ऊपर 2 प्लस है और एक Fe जिसके ऊपर 3 प्लस है, कौन ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? ये वाला 3 वाला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मींस अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है। सो फॉर कैटायन, जरा ध्यान से देखना पे मैं क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन। बट इसी का अपोजिट हो जाएगा, इफ आई एम राइटिंग हियर O माइनस एंड O2 माइनस, which one is attract more strongly electron? O माइनस, इसका अपोजिट हो जाएगा ना बेटा, इस पे नेगेटिव कम है, इस पे नेगेटिव ज्यादा है, ज्यादा नेगेटिव है तो इसको ज्यादा रिपेल करेगा, कम है तो कम रिपेल करेगा, मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। आपको समझ में आ रही चीजें, राइट? तो हम लोग कह सकते हैं, यहीं पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओके क्या, चार्ज ऑन एनायन। गॉट इट? चलिए लिख लीजिए इसको। एक और फैक्टर है यहाँ पे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, दैट इज व्हाट, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन, सॉरी 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 सॉरी, दैट इज व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन, आई एम सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन। हाइड्रेशन तो अलग किया जाएगा, मैं बताता हूँ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। अभी ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसमें हिंट, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ये देखो हाइब्रिडाइजेशन, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ बेटा। हाइब्रिडाइजेशन जरा समझो इसको, ये केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ क्योंकि आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैंने ले लिया कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। ये आपको पहले से पता है। यहाँ पे s के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2। s के पास एक ऑर्बिटल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2s और 2p दोनों सेकेंड शेल में होते हैं, क्योंकि 2 लिखा है ना मैंने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 एंड 2। यहाँ पे सिर्फ s होता है, दिस इज व्हाट 1s। यहाँ पे क्या होता है, 2s और 2p दोनों होते हैं। तो इनके अंदर एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो जब ये कार्बन किसी से बॉन्ड बनाने जाएगा, कोई और एटम इसको अप्रोच करेगा, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाएगा। देखो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, s की एनर्जी थोड़ी सी कम है और p की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, तो s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला गया, p में। इसी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया कार्बन का। अब होगा हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है,
दो अलग अलग चीजों को मिक्स करना एक नई चीज बना देना, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, राइट। जैसे एक मैं कह दूं कि यहाँ पे ये है रेड रोज है, ठीक है, रेड का एक फ्लावर है यहाँ पे, रेड रोज है। और दूसरा जो है एक व्हाइट रोज है, व्हाइट रोज का प्लांट है। ऐसा, सॉरी, दोनों के ब्रांचेस को मैंने कट करके निकाल दिया और एक नया ब्रांच बना दिया, एक नया हाइब्रिड मैंने बना दिया, यहाँ पे दोनों को मिक्स कर दिया। तो अब जो फ्लावर आएगा वो कैसा आएगा, पिंक आएगा, नाइदर व्हाइट नॉर रेड, दैट इज व्हाट पिंक। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, दोनों का मिक्सचर हो गया। तो जरा देखो यहाँ पे, समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखो। इट मीन्स व्हाट, अब ये जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, मतलब s का ऑर्बिटल और p का ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो s के पास एक ऑर्बिटल है और p के पास तीन ऑर्बिटल है। जरा देखना जरा सर, अगर s का एक और p का एक मिक्स होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर s का एक और p का दो ऑर्बिटल मिक्स होता है तो इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर s का एक और p का तीन ऑर्बिटल मिक्स होता है तो इसको बोलेंगे हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इतनी बात क्या आपको समझ में आ गई? Got it? One S and one P mix, then it is called what? sp hybridization. One S and two P mix, then it is called what? sp2 hybridization. One S and three P mix, then it is called what? sp3 hybridization. I hope you understood this part. This occurs only in excited state. Yes, yes. After excited state. After excited state, हाँ, ठीक है। Okay. जरा नोट डाउन करो इसमें, हाँ। Okay, so got this hybridization. तो अब देखो यहाँ पे, अब जरा देखना यहाँ पे, मेरी बात को समझना। अगर मैं बता रहा हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन, फिर बता रहा हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर मैं बता रहा हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज ऑफ s कितना है इसमें? देखो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, देखा जरा, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, हाँ,
एस कैरेक्टर। अब यहाँ पे एक एस और एक पी है ना, तो एस का पार्टिसिपेशन कितना हो गया 1/2 into 100. So we can say that here is s is what 50%. Percentage of s is what 50%. यहाँ पे क्या आएगा 1/3 आ जाएगा into 100, right? That is what 33.33. नोट डाउन करो इसको। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज कितना देगा बेटा इसका, दैट विल बी 33.33%। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। देखो टोटल ऑर्बिटल कितने, 4, 1 2 3 4, 4 में s कितना, 1, तो 1/4 इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज ना, तो ये आ जाएगा 25%। सो आप देख रहे हो यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा है, तो जहां पे s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यही मुझे एक्सप्लेन करना था। So electronegativity is directly proportional to the S character, या फिर ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे S character, right ना? Electronegativity is directly proportional to S character. It means what? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ओके, सो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, कौन से एब्रेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, आप बताओ मुझे। SP. यस, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, देखिए ऐसा लिख देंगे यहाँ पे, electronegativity of sp hybridization is greater than the sp2, sp2 is greater than what, sp3। क्लियर हो गया? ये नोट डाउन कर लो पॉइंट। I've done. Now we discuss about the trend in periodic table. Huh? Have you noted this? Yes. Okay. तो आपको दो चीजें मैंने
बता दी क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस उसका स्केल, और तीसरा फिर फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। हाँ, ग्रुप्स एंड पीरियड में क्या ट्रेंड होता है इसका देख लेते हैं, ठीक है। ट्रेंड इन ग्रुप्स एंड पीरियड, चलिए। पहले मैं बात करता हूँ लेफ्ट टू राइट। इन पीरियड, पीरियड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। जैसे लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखना जरा ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूंगा ग्रुप में, इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन व्हाट विल गेट हियर, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, राइट। और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, डिक्रीजेस। गॉट इट? क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट ना, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, दिस इज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसेस। ये आइसोलेटेड में होता है, ये किस में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, राइट ना, बाइनरी कंपाउंड में, ठीक है। ये समझ में आ रही है? इसका जो होती है वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, रिलेटिव वैल्यू, दिस इज व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये शायद डिफरेंस है उसमें, दोनों को कंपेयर मत करना एक दूसरे, मतलब सेम नहीं है वो। ओके, अब मैं कुछ एलिमेंट्स के पॉलिज स्केल जो है वो मैं लिखने जा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में, जो कि जिसमें से 5 या 10 एटलीस्ट होगा, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया, बना लिया आपने, आगे चले। सर हाँ, यस, चलिए। जैसे यहाँ पे ले लिया बेटा मैंने हाइड्रोजन, ये पॉलिश स्केल है, हाइड्रोजन, उसी से कंपेयर कर लेंगे सबको, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। नोबेल गैस तो बाइंड ही नहीं करते, तो वहां पे जरूरत ही नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। ये कंडीशन है।
अच्छा, क्या है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 2.1। इसका क्या होता है? 1। इसका क्या हो जाता है? 0.9। अब यहाँ पे देखते हैं बेरिलियम का कितना हो जाता है? 1.5। बोरॉन का हो जाता है 2। कार्बन का आ जाता है 2.5। नाइट्रोजन का आता है 3। ऑक्सीजन का आता है 3.5। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है 4। नाउ मैग्नीशियम इज व्हाट? 1.2। एल्यूमिनियम इज व्हाट? 1.5। सिलिकॉन इज व्हाट? 1.8। phosphorus is what? 2.1. sulfur is what? 2.5. and chlorine is what? चलिए, यहाँ पे मैं ब्रोमीन और आयोडीन भी ले लेता हूँ क्योंकि ये यूज होते हैं। तो यहाँ पे बेटा ब्रोमीन का होता है 2.8 और आयोडीन का हो जाता है 2.5। कितनी चीजें आपको यूज हो जाएंगी, कितने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो लेफ्ट टू राइट इट इज इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इट इज व्हाट? डिक्रीजेस। क्लियर है? किसकी लगभग सेम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो आप कार्बन और सल्फर का देख रहे हो सेम है। कार्बन एंड सल्फर इज इक्वल टू 2.5। आयोडीन भी है ना साथ में। टू पॉइंट फाइव। ठीक है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन कितना आ जाएगा? 3। फास्फोरस और हाइड्रोजन 2.1। ठीक है, कितनी चीजें हो गई? बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये भी देखो। इसीलिए यहाँ पे होता है डायगोनल रिलेशनशिप, पढ़ा है ना? राइट, they are Yes, diagonally sir. related to each other, their some properties are similar, that's what is called a diagonal relationship। मैं बताऊंगा अभी इसमें। कितनी चीजें क्लियर हो गई बेटा आपकी एकदम परफेक्टली? Yes. sir. वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या क्या प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, या इसके हम लोग कह सकते हैं एप्लीकेशंस। ये नोट डाउन हो गया? आगे चलो। नोटेड? Yes, sir. ओके, सी एप्लीकेशंस है।
applications of electronegativity. ठीक है, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है इसमें, देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है इसमें एप्लीकेशंस के लिए। पहला नॉमेनक्लेचर। हाँ, कंपाउंड कैसे, जैसे अगर HCl बोलेंगे तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो लिखने का तरीका क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं और उसके आगे लगाते हैं आइड, तो इसका बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको पता है ना, क्लोरोहाइड्राइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे NaH लिख दिया, अब जरा देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्राइड, क्योंकि अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। हाँ, सोडियम हाइड्राइड। गॉट इट। इसके लिए दूसरा होता है इसमें परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इन कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, देखो कोई भी बॉन्ड अगर है तो वो प्योर आयोनिक नहीं होता और प्योर कोवेलेंट नहीं होता। जैसे अगर मैं इसको बोलूं कि ये प्योर कोवेलेंट है, नहीं, ये क्या है, थोड़ा सा आयोनिक है, क्योंकि इस पे पार्शियल निगेटिव है और ये इस पे पार्शियली पॉजिटिव है। तो कितना आयोनिक कैरेक्टर है इस पे, राइट, कौन से बॉन्ड मोर आयोनिक होते हैं, कौन सा बॉन्ड मोर कोवेलेंट होते हैं, राइट। इसके लिए भी कभी लूंगा मैं लेक्चर, दैट इज व्हाट फजान रूल, उससे रिलेटेड एटॉमिक साइज पे, रेडियस पे डिपेंड करती है, राइट, उसके चार्ज पे डिपेंड करता है। सो ये हो गया इसका आयोनिक कैरेक्टर का। ठीक है, जरा इसको देख लेना अभी। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए, जरा देखो यहाँ पे कैलकुलेशन का फॉर्मूला कैसा है।
जैसे आयोनिक कैरेक्टर अगर मैं निकालने जाऊं, ठीक है, ऑफ HCl इज इक्वल टू 16 mod delta x 3.5 डेल्टा x स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो कैसे रखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना, यहाँ पे आराम से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, एक्स ए माइनस एक्स बी, राइट, दिस व्हाट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बेसिस पे, राइट। तो यहाँ पे क्या था पीयर का, एक सेकंड ना, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अभी सपोज मुझे एच एफ का निकालना है, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे, ये तो एक नॉर्मल फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब जरा देखो, मैं अगर निकाल रहा हूँ आयोनिक कैरेक्टर ऑफ एच एफ, तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने लिख दिया 16 डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंस ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, देखो एच और एफ में कितना डिफरेंस है आप बताओ, एच का है 2.1 और एफ का कितना है 4, कितना आएगा डिफरेंस, 1.9। 1.9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1.9। समझ में आ रही है भी चीजें, 1.9 हो गया, राइट ना, प्लस 3.5 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, इनटू स्क्वायर हो गया, यही तो है फॉर्मूला, समझ में आ रहा है ना। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट अपना आ जाएगा 43%। तो ये 43 आयोनिक परसेंटेज है। क्लियर, इस तरह से आपको निकालने के लिए आ सकता है। नोटेड। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है, तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, राइट। बॉन्ड का स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, सपोज HCl है, HF है और FCl है, ठीक है, HBr है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आएगा इसमें, बोलो। देखो, अगर मैंने इसमें फाइंड आउट किया तो इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी वहां पे बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चौथा हो जाएगा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, वो भी चीज यहाँ पे समझ सकते हैं।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, राइट। आप कोरिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? यस। नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, अब जरा यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना, हाँ, उसको समझना। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखो, जैसे मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी आएगा, उसको मैं बताऊंगा आपको, हाइड्रोक्साइड का नेचर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस, हाँ, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है, अगर ये 0.6 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, 1.9 आ रहा है, 2.2 हो रहा है, 2.8 हो रहा है, या 3.2 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर। अब जरा देखना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50, यहाँ पे हो जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा 86, और यहाँ पे आ जाएगा 92। ठीक है, इसका मतलब नोट क्या हो गया यहाँ पे, नोट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between the two bonded atoms is less than 1.9। अब देख रहे हो ना यहाँ पे, लेस देन 1.9, the bond is said to be predominantly covalent। कोवेलेंट, समझाइए, अगर 1.9 से कम हो रहा है डिफरेंस तो वो ज्यादा कोवेलेंट होगा, और अगर 1.9 से ज्यादा हो रहा है तो वो क्या होगा, ज्यादा आयोनिक होगा। आपको समझ में आई चीजें, ये डिफरेंस? ये दूसरा अलग पॉइंट है ना। हाँ, ये यही ना, वैसी से रिलेटेड। देखो यहाँ पे कैसा डिफरेंस है, जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा था अपना, इसका कितना था, 4 था, और इसका कितना था, 2.1 था, 2.1, और यहाँ पे कितना था, 4, 4 माइनस 2.1 कितना आ रहा था, 1.9, यही आ रहा था ना। 1.9 आएगा तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें 50% आयोनिक और 50% कोवेलेंट है। दिस इज 50% आयोनिक एंड 50% कोवेलेंट। आपको चीज समझ में आई अभी? HF इज व्हाट, 50% आयोनिक एंड 50% कोवेलेंट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूं HCl में, तो इसका कितना है, 2.1, और इसका कितना था, 3.5, यही था ना। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा,
1.4 3.5 ही है ना? ये 3 है 3 है, 3 है, सॉरी। तो कितना आ रहा है इसका? दैट इज व्हाट 3। अब डिफरेंस कितना आ 0.9 जाएगा? हाँ, 0.9 0.9। तो ये कैसा है? अगर पॉइंट आने का मतलब ज्यादा ये कोवलेंट है, मतलब इसके कंपेयर में ये ज्यादा कैसा है? कोवलेंट है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? yes sir हाँ, understood दैट इज वे। जस्ट डू इट। फिर ये बॉन्ड लेंथ से अलग है ना पॉइंट हाँ, ये बॉन्ड लेंथ से अलग है, बॉन्ड लेंथ से इससे रिलेटेड। बॉन्ड लेंथ तो मैंने बता दिया इसमें, बॉन्ड लेंथ और हाँ स्ट्रेंथ उससे रिलेटेड नहीं है ये अलग चीज है थोड़ी सी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। हाँ, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन इसका। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, so if I'm writing here, if electronegativity increases, the non-metallic character increases। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। समझ में आ रही बात आपको? अगर मेटेलिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में, so when we move from left to right, then we know that electronegativity increases. Left to right, electronegativity increases, that's why metallic character decreases, या फिर कहेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, राइट? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बात आई समझ में? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लोरीन इज
right? Most non-metallic element and cesium Cs, right, is the most metallic element. Got it? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 0.7 होती है. ये डिफरेंस है. गॉट इट? इतनी बातें आपको समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. Right. Yes. So this is all information about the electronegativity. ठीक है? All information about what? Electronegativity. तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस मैंने बता दिया क्या होता है, दोनों सेम नहीं होते. ठीक है? तो आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेंगी. हाँ, और मुझे बताना बाद में कि क्या डिफरेंस आ रहा है. दोनों को लिख के बताना मुझे. हाँ? समझ में आ गई बातें इतनी? ठीक है. सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना, ठीक है, वो आएगा थोड़ा सा कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी से रिलेटेड. तो मैंने जो बताया आपको आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर से रिलेटेड, पजान रूल से रिलेटेड, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. थोड़ी सी चीजें, राइट ना? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, एक्चुअल वो तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ना है, बट यहाँ पे मैं बता दूंगा तो ऑलमोस्ट ये चीजें खत्म हो जाएगी. तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो चीजें अभी यहाँ तक हो चुकी है. ठीक है? थोड़ा सा एक लेक्चर में और लूंगा और ये चीजें पूरा कंप्लीट हो जाएंगे. फिर मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग बताएंगे मोल कॉन्सेप्ट. ओके?